Hello student, so in this video we are going to discuss class 10th maths exercise 5.3. So before starting this, let's recall some of its formulas. So the first formula is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So n is the nth term, a is the first term, and d is the different. So Sn is equal to sum of the terms up to n term. So let's start the first question. First question is find the sum of the following APs 2, 7, 12 up to 10 term. So we have to find the sum. So 2, 7, 12 and 22. So in this question we have given a is equal to 2, d is equal to 5, n is equal to 10. So S10 is equal to 10 by 2. So this is equal to 10 by 2 and this is equal to 2a. 2 into a 4 plus 9 minus 10 minus 1 9 and d is 5. So 9 into 5 45. So this is equal to 49 into 5. So this is equal to 245. Now move to the second part. Second part is minus 37, minus 33, minus 29 up to 12 term. So AP is A1 is equal to minus 37 and D is equal to 4, N is equal to 12. So S12. So we have to find S12. S12 is equal to 12 by 2. So this is equal to 6. This is equal to 2 into A, 2 into A. So this is equal to minus 37 and then 12 minus 1 11 into D 4. So this is equal to 6 into minus 74 plus 44. So this is equal to 6 into, so this is equal to minus 180. So this is second part. Now we are going to discuss the third part. Third part is 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 term. So we have to find S100. So this is equal to third part. So A is equal to 0.6, D is equal to 1.1 and N is equal to
100. So S 100 is equal to 100 by 2, 100 by 2, and this is equal to 2a. So 2 into a. So 2 0 a is equal to 0.6. So this is equal to 1.2, 1.2 plus 100 minus 1, 99 into 1.1. So this is equal to 50 into 110.1. So this is equal to 5505. So this is all about third part. Now move to the fourth part. 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 up to 11 term. So next one is fourth. A is equal to 1 by 15. D is equal to 1 by 12 minus 1 by 15. This is equal to 1 by 60. N is equal to 11. So S11 is equal to 11 by 2, 2 upon 15 plus 11 minus 1 into 1 by 16. This is equal to 11 by 2. This is equal to 2 by 15. 2 by 15 plus 1 by 6. So this is equal to 11 by 2 into 3 by 10. So this is equal to 33 by 20. So this is all about fourth part. Now move to the second question. Find the sums given below. So we have to find the sum. What we have to do? We have to find the sum. So second, first. ये देखो यहाँ पे क्या है a1 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 21 by 2 minus 7. So this is equal to 7 by 2, and L is 84. एक और फॉर्मूला होता है इसका. So first we will find the n. N is equal to an is equal to this L. L means last term. So last term we can write as an. So this is equal to an is equal to a plus
n minus 1 into d. So first we find the n is equal, so n फाइंड करने के लिए 84 7 प्लस n minus 1 into d क्या है 21/2. So this is equal to 77 is equal to n minus 1 into 7/2. So n is equal to, सॉरी ये हो गया 7/2 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 23, यानी इसके अंदर 23 टर्म है. सो अपने को क्या निकालना है S23. सो S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 7 प्लस 84. ये कैसे आया? देखो Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो इसको क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी. तो ये किसका फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन, वही यूज किया है. सो n/2 ए एन को क्या कह सकते हैं अपन l भी कह सकते हैं लास्ट टर्म. सो a प्लस l. सो वही फॉर्मूला यूज किया है n/2 a प्लस ए एन. सो दिस इज इक्वल टू 23/2. This is equal to 91 and it goes to 093 divided by 2. So we can write this as 10461 by 2. So this is the second part. So sorry, first part, second question, first part. Now move to the second question, second part. So second part is, wait a minute. Okay. Second question. So this is second part. What we have given, a is equal to 34 and d is equal to minus 2 and an is equal to 10. So 10 is equal to 34 plus n minus 1 into d. d क्या है -2. So this is equal to minus 24. This is equal to n minus 1 into -2. This is equal to, यहाँ से n जब सोल्व करेंगे तो n क्या आ जाएगा 30. अब निकालना क्या अपने को, n 13 है तो अप टू 13 टर्म निकालना है. सम ऑफ अप टू 13 टर्म. सो 13/2. ये z नहीं है, ये 2 है. दिस इज इक्वल टू 34 प्लस 10. लास्ट टर्म अभी पीछे फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस l या फिर a प्लस l, सॉरी a प्लस a बाई n a n. सो दिस इज इक्वल टू 13/2 इंटू
44. So this is equal to 286. So this is the second part. Similarly, we can do third part. Now, थर्ड पार्ट भी इजी है, ऐसे ही कर लेंगे. सो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन के एक दो पार्ट करा देता हूँ, फिर ये सारे आप कर लेना. सो थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? A5 गिवन है, D3 गिवन है, AN50 गिवन है. सो फाइंड N और SN. सो देखो, फर्स्ट पार्ट देखो. AN50 गिवन है. AN50 गिवन है, यानी ये क्या होगा? 5 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50. कैसे? A1 अपने के पास क्या गिवन है? A1 5 गिवन है, D3 गिवन है, तो यहाँ से अपन n की वैल्यू निकाल लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45. सो n-1 इज इक्वल टू 15. सो n इज इक्वल टू 16. अब अपने को क्या निकालना है? S16 निकालना है. S16 इज इक्वल टू 16/2 and this is equal to 10. 2 into A1 plus n minus 1, 16 minus 1, 15 into D, this is equal to 3. So this is equal to 8 into 55. So this is equal to 440. So this is the first part. Now move to the second part. सेकेंड पार्ट में क्या है? A7 है, A13 35 है, और क्या गिवन है? D, find D and S33. So we have to find D and S33. So देखो, यहाँ देखो, A is equal to 7, A13 क्या है? 35. So क्या हो जाएगा? 35 is equal to 7 plus 12D. यहाँ से D की वैल्यू निकालो. D क्या आ जाएगा? 7/3. अब देखो, अपने को निकालना क्या है? S33, सॉरी S13. सो S13 इज इक्वल टू n/2, 13/2. This is equal to 14. 2a plus n minus 1, 12 into D, 7/3. So this is equal to 13/2 into 42. So this is equal to 273. 273. सो ये तो था सेकंड पार्ट. अब देखो, ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? A12 37, D3 फाइंड A एंड S12. सो ऐसे ही कर लेंगे ये वाला भी. कुछ नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला याद होने चाहिए. सो A12 इज इक्वल टू 37. सो दिस इज इक्वल टू A प्लस 33. ये कैसे आया? देखो, A1 प्लस n-1, 12 - 1, 11 इंटू D क्या था? 3. दैट इज इक्वल टू 37.
37। सो यहाँ से ए क्या आ गया, ए आ गया, वेट अ मिनट, ए क्या आ गया, 4। अब अपने को निकालना क्या है, S12 is equal to 12/2, so this is equal to 6, A1 8, 2 into A 8 plus 12 minus 1, this is equal to 11 into D 3। सो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 into 41, so this is equal to 246। ये तो था थर्ड पार्ट। ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेम ऐसे ही है, बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, निकल जाएंगे आराम से। फिर सारे पार्ट कर लेना अप टू 10 टर्म। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी 9725 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी, देखो एपी अपने पास गिवन है 9 7 9 17 25, ये एपी गिवन है। सो बोल क्या रहा है ये, मस्ट बी टेकन, सो गिव ए सम ऑफ 636, कितनी टर्म ले ताकि ये 636 सम दे दे। सो एस एन इज इक्वल टू 636। सो एस एन 36 है, तो ये क्या हो गया, 636 इज इक्वल टू n/2, and this is equal to a1 2a, 2a is equal to 2 into 9, and this is equal to n minus 1 into d, 17 minus 9, so this is equal to 8, so this is equal to 6 3 6 is equal to n into, इस 2 को पूरे से डिवाइड कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 8n होगा, 8n की जगह क्या आ जाएगा 4n, माइनस 8 की जगह क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, सो दिस इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, सॉरी 4n स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 4n स्क्वायर 5n माइनस 6 3 6 इज इक्वल टू 0, 6 3 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या है, जब इनका फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 6 3 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो n यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया 4n प्लस 53 माइनस 12, ये क्या बच गया 4n प्लस 53, सो दिस इज इक्वल टू 0।
सो यहाँ से क्या आ गया, एन इज इक्वल टू, एक तो क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 12, एक इज इक्वल टू क्या, एक क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 53/4। एन हमेशा एन हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा नहीं, तो इसको क्या कर देंगे अपन, रिजेक्ट कर देंगे, ना ही नेगेटिव होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 12। तो ये तो था फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and the last term is 45 and the sum is 400, find the number of term at the common difference। So we have to find n and d। so देखो यहाँ देखो, a1 is equal to 5 and an is equal to 45, sn क्या है 400। ऐसे ही जब sn का जब फॉर्मूला लगाएंगे, सो दिस इज इक्वल टू 400 n/2 n/2, और क्या होता है a प्लस ए एन, या फिर बोल सकते हैं a प्लस एल, ए एन को ही एल कहते हैं, ए एन मीन्स लास्ट टर्म। सो दिस इज इक्वल टू, वेट, सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 45। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से जब n निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 16। n अगर 16 आ गया, सो वही a16 इज इक्वल टू, a16 अपने पास 45 गिवन है, यानी लास्ट टर्म जो थी ए एन अपन ने 45 देखो प्रमाण रखा था, गिवन था मतलब, तो a16 क्या हो गया 45। सो दिस इज इक्वल टू, a16 का फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी। सो a1 क्या है 5, 5 प्लस n-1, n-1 15 इंटू डी। सो दिस इज इक्वल टू 45, 45। सो डी इज इक्वल टू 40/15। सो ये कितना आ गया, 40/15 क्या हो गया, 8/3। सो ये तो था फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum। सो देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, a17 गिवन है और an गिवन है 350 और d गिवन है 9। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो अपने को n निकालना है, एंड व्हाट इज देयर सम, तो अपने को sn निकालना है। देखो ये रहा, सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए क्या गिवन है 17, an क्या गिवन है 350, d क्या है 9। सो यहाँ से फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। सो ए एन क्या है 360, a1 क्या है 17 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है 9। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या, n क्या आ जाएगा 38, यानी अपने को 38 टर्म्स है। सो अब अपने को निकालना क्या है S38। सो S38 इज इक्वल टू 38/2,
यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस एल, एल क्या है अपने पास 350, तो ये क्या हो गया 19 इंटू 367, सो दिस इज इक्वल टू 6973। सो ये तो था सिक्स क्वेश्चन। अब चलते हैं सेवन्थ पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म of an AP in which D is equal to 7 and 22 term is 149। So देखो A22 गिवन है, 149, सो इवन A22 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस n-1 21 इंटू 7, डी क्या अपने पास 7 है, सो यहाँ से जब A निकालेंगे तो A क्या आ गया 2। ऐसे ही अपने को निकालना क्या है S22, सो S22 इज इक्वल टू 22 बाय 2 इंटू ए वन क्या है 2, 2 इंटू 2 करेंगे 2A होता है, सो 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा ये, प्लस n-1, सो n-1 इज इक्वल टू 21 इंटू डी, सो डी क्या है अपने पास 7, सो दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 151, सो इसका आंसर आ जाएगा 1661। ये तो सेवन्थ क्वेश्चन। देखो, अब देखो एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। अपने को क्या गिवन है, ए ए टू गिवन है, A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18। यहाँ से क्या आ गया, इससे क्या आ गया A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और इस A3 से क्या आ गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या आ गया माइनस डी इज इक्वल टू -4, सो डी इज इक्वल टू क्या आ गया 4। जब पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब पूछा क्या है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, सो पहली 51 टर्म की निकालना है सम, सो S51 इज इक्वल टू क्या आ गया 51/2 इंटू 2A, सो 2A इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या अपने पास 10, सो 2A करेंगे तो 2 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल टू 51 -1 इंटू 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 इंटू 110, सो दिस इज इक्वल टू 5610। ये तो था एट्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 49, seven term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, so we have to find the sum of first n term, so wait a minute, so ninth question is
if the sum of first 7 term of NAP is 49, so sum of 7 term of NAP is 49 and 17 term of is 289. So if the 7 term of NAP is 49, so this is equal to 7 by 2 into this is equal to 2a plus 7 term of NAP, this is equal to 7 minus 1, this is equal to 6d, this is equal to 49. So if we divide this 2, so we get a plus 3d, यहाँ से ये 7 से 7 कट गया, क्या बच गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और 17 टर्म का जो सम है वो गिवन है 289, तो यहाँ से क्या आ गया 17/2 n/2 17/2 and this is equal to 2a plus n minus 1, so this is equal to 16 into d, ये कितना गिवन है 7289, 289 को जब 17 से काटेंगे क्या बच जाएगा 17 और इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच गया a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये होगी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन होगी सेकंड। जब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। निकालना क्या था अपने को Sn, सो Sn इज इक्वल टू n/2 एंड दिस इज इक्वल n/2 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2n, सो दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो इस वीडियो में अभी हम 9 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में जो रहेंगे क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।